Hello all dear my lovely students, welcome back to our YouTube channel. I am again with a new chapter and the chapter is Kingdom Animalia, or you can say Animal Kingdom from the 11th standard CBSE NEET preparation. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को प्रॉपरली स्टडी करना है तो मेरे बताए हुए टेक्निक्स के ऊपर चलिए, आप डेफिनेटली इसमें से 3 आउट ऑफ 3 एमसीक्यू कवर कर पाओगे। तो किंगडम एनिमलिया जो कि नीट में 3 एमसीक्यू आते हैं, इसमें से 12 मार्क्स का वेटेज वाला चैप्टर है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर किंगडम एनिमलिया। सबसे पहले एनिमल या तो किंगडम एनिमलिया क्या है। We have learned in biological classification chapter number 2 that all the animals are divided into the all the living organisms are divided into almost 5 categories by the scientist R.H. Whittaker. He has classified every organism in 1969 in a 5 domain system of classification. He classified every organism into category like kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So all the members of kingdom Animalia are eukaryotic multicellular heterotrophic organism. Yes, they are eukaryotic because they contain perfect nucleus. They are heterotrophic because they are depending on the plant for getting a food material directly or indirectly, and they are all multicellular organism. Almost all the animals are multicellular. There is no unicellular. क्या होता है किंगडम एनिमलिया? किंगडम एनिमलिया ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रॉपर मैच्योर न्यूक्लियस होता है, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और हम जो भी हैं एनिमलिया, हम सभी मल्टी सेल्यूलर हैं। इनमें से हम ह्यूमन कह लो या कोई भी कह लो, एनिमल में कोई भी यूनिसेल्यूलर नहीं। ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया आर नॉट कंटेनिंग सेल वॉल ऑन द cell, and they are containing all membrane bounded organelle except chloroplast, like they are containing mitochondria, Golgi apparatus, you can say endoplasmic reticulum, lysosome, but not the chloroplast, because no animalia are food producer. They are depend on another. We are consumer, therefore we can't prepare food because we don't have chloroplast, guys. So this is the basic things about the all members of kingdom Animalia. Now I would like to tell you basic classification of kingdom Animalia in this topic. I'll tell you basic classification as well as I'll tell you criteria for the classification or basis of classification detail. So first I'll tell you basis of classification, then we will move towards criteria for the classification. Let's start. So, basis of classification. We can also describe this point as criteria for classification. Criteria for classification. So what is meant by basis of classification or criteria of classification? याद रखो सभी स्टूडेंट, ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है। सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे पोरीफेरा हो, हेमिकोर्डेटा हो, प्लासेंटा हो, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो, कोई भी हो, सभी के बारे में पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको सभी के बारे में 5, 6, 7, 8 ऐसे कैरेक्टर समझाऊंगा, और कैरेक्टर समझने के बाद हमें एकदम सिंपल सा हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर ये एकदम सिंपल हो जाएगा। और इसे समझने के लिए, वो कैरेक्टर को समझने के लिए आपको ये वाला पहला पॉइंट समझना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दिस टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वी आल्सो कॉल्ड इट एज अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। व्हाट आर दिस क्राइटेरिया? Criteria are the type of you can say phenomena by which we can classify every organism into the particular group. Every organism into particular group. So we will describe one by one criteria. Say for example, first criteria. Yes, number of germ layers.
So the number of germ layers. Now what is meant by germ layers that I'll tell you in detail. और मैं सभी के सभी क्राइटेरिया को डिटेल में पढ़ाऊंगा. So पहला वाला देखिए number of germ layer. See, during the sexual reproduction in the human being or in any animal, after sexual reproduction fertilization takes place, and after fertilization pregnancy takes place. And after pregnancy, or you can say not after pregnancy, during pregnancy, our body organs are synthesized. तो जब ह्यूमन बीइंग में या तो कोई भी एनिमल में प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तब हमारे बॉडी के पार्ट्स तैयार होते हैं, और बॉडी के पार्ट्स तैयार होने के लिए 3 लेयर्स लगती है, और इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं, इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं, फर्स्ट वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, और अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म. तो अगर कोई एनिमल के अंदर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एनिमल को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को जो 2 लेयर होती है वो होती है बाहर की एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म. लेकिन अगर कोई एनिमल में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. हम ह्यूमन बीइंग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम ह्यूमन बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं. यस. So when an animal contain only 2 layers or only 2 germ layers, they are called as a diploblastic animal. And if an animal have a 3 germ layers, they are called as a triploblastic animal. अगर किसी एनिमल के अंदर सिर्फ 2 ही लेयर होती है तो उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और अगर किसी एनिमल के अंदर 3 लेयर होती है तो हम उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकंड क्राइटेरिया आई टेल यू. Second criteria is a blood type. Now what is meant by blood type? Actually NCERT में इतना डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बेसिकली बताता हूँ. See, what is blood type? Open circulation and closed circulation. Now second criteria is a blood type. If an animal contain blood vessels or blood flow through the blood vessels, it is called a closed type of a circulation. And if a particular animal shows no blood vessel in his body, then it is considered as an open type of circulation. Generally all the members of a you can say phylum Arthropoda, they are containing open type of circulation, but maximum cockroaches and insects are having open type of circulation, and we human beings and all mammals or all you can say mammals are having closed type of circulation. जिनके अंदर ब्लड आर्टरी और वेन के थ्रू फ्लो होता है उनको हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी एनिमल, जो विलियम हार्वी ने डिस्कवर की थी. और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब अगर जिसके अंदर ब्लड डायरेक्टली एम्प्टी कैविटी में फ्लो होता है उनको हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप ऑफ एनिमल, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी एनिमल. सो ये सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, मतलब सेकंड क्राइटेरिया होगा. उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्युलर लेवल, टिश्यू लेवल, organ level. Now there are certain animals in which only cells are produced, but they are not converting into tissue. Such kind of animals are categorized as cellular level of organization. And there are certain animals in which cells are getting together and they are converting into tissue. Such kind of animals are considered as a tissue level organization. And there are certain organisms in which cells are getting converted into tissue and tissues are forming organ and organs are forming organ system. Such animals are considered as a organ level system of organization. Such animals are considered as organ level system of organization. Like we human beings are having organ level system of organization. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्स फॉर्म होते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनते, तो उस प्रकार की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. और किसी किसी में सेल में से टिश्यू बनते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और किसी किसी में
टिश्यू के बाद ऑर्गन भी बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, मैंने आपको बेसिक बताई. आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ लेवल लाइक सिमेट्री. What is mean by symmetry? When you cut particular animal in any plane, if that animal get divided into equal halves or equal parts, such phenomena is called as a symmetry. अगर आप किसी एनिमल को सेंटर से कट करते हो और अगर उसके दो इक्वल पार्ट्स हो, सेंटर से मतलब कोई भी डायरेक्शन से कट करते हो, अगर उसके इक्वल पार्ट्स होते हैं तो हम उनको कहते हैं, उस फिनोमिनन को, उस फीचर को हम कहते हैं सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री और सिंपली कह लो सिमेट्री. अब तीन प्रकार की सिमेट्री आती है. फर्स्ट सिमेट्री होती है सिमेट्रिकल एनिमल. सिमेट्रिकल एनिमल में बेसिकली कहेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल. देन यू कैन से asymmetrical एनिमल. और थर्ड होगा हमारे सामने रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल. अब ये देखेंगे क्या है. अगर किसी एनिमल को हम वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं और उनके दो पार्ट्स हो जाते हैं इक्वल पार्ट्स, तो हम उसे कहेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल. अब आप देखिए ह्यूमन बीइंग, अगर हम सेंटर से वर्टिकली ऐसे कट करते हैं तो हमारे बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, इक्वल पार्ट्स. दोनों साइड एक हैंड आएगा, दोनों साइड एक लेग आएगा, आधा ब्रेन आएगा, एक आंखें आएगी, ठीक है. तो इक्वल पार्ट्स हुए ना. If we are cutting only in vertical section and we are getting two equal parts, two equal body part, then it is called yes, bilateral symmetrical. Bi means two, bilateral means divided into two. Yes. See the third one, radial symmetrical. When you cut the particular animal in vertical section or horizontal section or vertico-horizontal or horizo-vertical, any plane, if their body get divided into equal parts, then it is called radial symmetrical. For example, starfish, octopus. अब देखिए octopus और starfish ऐसे एनिमल है जिनको आप वर्टिकली कट कर दो या तो हॉरिजॉन्टली कट कर दो, या तो वर्टिको हॉरिजॉन्टल कट करो या हॉरिजो वर्टिकल कट करो, कौन से भी प्लेन में कट करो, आपको ऐसा दिखाई देगा कि यस इनके बॉडी के इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. तो इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं यस रेडियल सिमेट्रिकल. अगर सिर्फ वर्टिकली कट करो इक्वल पार्ट्स होते हैं तो बायलैटरल. अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कौन से डायरेक्शन में कट कर दे इक्वल बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल. और असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ये ऐसे एनिमल है जिनको आप वर्टिकली कट करो या हॉरिजॉन्टली कट करो, कौन से टेक्निक से कट करो, ये इक्वली डिवाइड होंगे ही नहीं. तो तभी हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं असिमेट्रिकल, मतलब जिनके अंदर प्रॉपर कोई सिमेट्री नहीं है. ठीक है. If you cut particular animal in vertical section, divide into two part, bilateral. If you cut particular animal in vertical section or horizontal section, if their body divide into equal part, then it is called radial symmetry. And if you cut a particular animal in any plane, either vertical or horizontal, any plane, but if their body cannot divide into equal part, then such kind of symmetry is called as a asymmetrical. Yes. So ये तीन प्रकार की symmetry होती है. अब हम चलते हैं आगे की तरफ. Yes. Then you can say बॉडी प्लेन. नाउ व्हाट इज मीन बाय बॉडी प्लेन. बॉडी प्लेन का मतलब क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है. फर्स्ट वन, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लेन. एंड सेकंड वन इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ठीक है. मुझे देख लें दीजिए कैमरा में दिख रहा है कि वहां तक आपको, यस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. सो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन बॉडी प्लान. ये देखिए दो टाइप क्या है. ट्यूब विद इन बॉडी प्लान मीन्स
when a particular animal have a two opening, one is considered as a mouth for eating purpose and second is anus for removing waste. That is called tube within tube body plan. अब ऐसे एनिमल जिनको दो ओपनिंग होती है, एक एज अ माउथ फूड खाने के लिए और दूसरा एनस एज अ वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ऑल्सो नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये वाला देखिए, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक मतलब एक ही ओपन। When a particular animal have only one opening for the putting a food into the mouth and same opening act as a anus for removing waste material, it is called as a blind sac body plan, also known as incomplete digestive system। अगर किसी एनिमल के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो उसका माउथ और एनस दोनों का काम करती है, मतलब वो फूड खाते भी यहीं से और वेस्ट मटेरियल रिमूव भी वहीं से करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो साइंटिफिकली हम उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। लेकिन अगर किसी एनिमल को दो ओपनिंग है, एक फूड खाने के लिए जैसे हम कहेंगे माउथ, और दूसरा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकने के लिए, वेस्ट मटेरियल डिफिकेशन करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब मींस दो ओपनिंग, एक एनस एक माउथ, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब एक ही ओपनिंग जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। तो ये वाला पांचवा फीचर है हमारा, फिफ्थ फीचर है जिसे हम कहेंगे बॉडी प्लान। अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय सेगमेंटेशन? Segmentation means there are certain animals. Now we human beings are divided into the three body parts, like a head, then thorax, and then abdomen. Head, thorax, and abdomen. And maximum animals are divided into three body parts only, like a head, thorax, and abdomen. But there are certain animal in which body parts are made by small segments. It is called segmentation property, like earthworm, Annelida. अब ये देखिए एनिलिडा जो होते हैं वो एग्जांपल अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की बॉडी कैसे बनी होती है? देखिए अर्थवर्म के अंदर ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, अर्थवर्म के अंदर ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना। इन पार्ट्स को हम कहते हैं सीटे या तो मेटामर्स। और ये कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होते हैं? मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis is the process by which a small segment of earthworms are synthesized. It is called metamorphosis because formation of metamer, which is a segment of a earthworm. This feature is called segmentation. Then I will tell you next feature. Body support. What does it mean by the body support? See, there are two type of body support is done by the you can say skeleton, and it is done by exoskeleton, and second one is endoskeleton. अब ये क्या है? अब आप देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपरली खड़ा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ मूव कर सकता हूँ। तो ये मूव करने के लिए क्या चीज चाहिए? एक तो मसल चाहिए बॉडी के, और मसल के साथ मूव करने के लिए हमारे बोन भी तो चाहिए, हमारे स्केलेटन भी चाहिए ना। तो स्केलेटन क्या है? हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो दो प्रकार के सपोर्ट है हमारे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में। मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्केलेटन देखिए, स्केलेटन बेसिकली प्रोवाइड अ सपोर्ट टू अवर बॉडी, एंड देयर आर टू वैरायटी ऑफ स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, सी when a skin is located outside and skeleton is located inside, such kind of a skeleton is called endoskeleton. अगर किसी की स्किन बाहर है और स्केलेटन अंदर है तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एंडोस्केलेटन। लेकिन अगर किसी का स्केलेटन बाहर है और उसकी पूरी बॉडी अंदर है तो उसे हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का एग्जांपल है हम ह्यूमन, डॉग, कैट, मंकी, बफेलो, राइनोसिरोस, yes, elephant, everyone, cow, buffalo, everyone. But exoskeleton का फेमस कुछ एग्जांपल है, लाइक पाइला। पाइला में बीच के ऊपर पाए जाते हैं, तो पाइला इज द एग्जांपल ऑफ अ, यू कैन से which skeleton? It is an example of exoskeleton. Clear everybody?
Now, eighth criteria I'll tell you, that is coelom or body cavity. अब ये क्या होता है? Yes, just imagine between the intestine and body wall. Between the intestine and body wall, if there is a particular space is available, empty space is available, then such a space is called as a empty cavity or also known as a body coelom. अगर हमारे इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल, अगर हमारे इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल इन दोनों के बीच में अगर कोई जगह है, एम्प्टी जगह, जिसे हम फूड स्टोरेज और ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, तो उस स्पेस को हम कहते हैं बॉडी सीलोम या तो बॉडी कैविटी. अगर हमारे इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस है तो उसे हम कहेंगे बॉडी सीलोम या तो बॉडी कैविटी. तो ऐसे तीन प्रकार के एनिमल आते हैं, जस्ट लाइक सीलोमेट, असीलोमेट और सुडो सीलोमेट. ठीक है, सीलोमेट, असीलोमेट और सुडोसीलोमेट. अब ये देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है. सीलोमेट जिनके अंदर ट्रू कैविटी है और वो फूड स्टोरेज के लिए और ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए अगर यूज करते हैं तो उसे हम कहेंगे सीलोमेट एनिमल. अभी जिसके अंदर कैविटी है ही नहीं तो उसे हम कहेंगे असीलोमेट. और जिसके अंदर कैविटी है लेकिन वो उस कैविटी का फूड स्टोरेज के लिए और ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर ही नहीं पाता या तो करता ही नहीं है तो उसे हम कहेंगे असीलोमेट एनिमल. यस, फॉर एग्जांपल, coelomate animals are those animals which are containing true cavity for the transport of a blood and storage of food. They are called coelomate animal. And animal those who don't have a cavity, they are called as a acoelomate animal. And animal those who have a cavity but it is a useless, they can't store they can't store food material, neither they transport blood through that, so it is a acoelomate. मान लो ये मार्कर है मेरे पास, लेकिन अगर मैं इसके अंदर इंक भी डालता हूं फिर भी ये लिख नहीं पाता है तो मार्कर ये यूजलेस हो गया ना. तो मार्कर तो है लेकिन कोई सिर्फ नाम का मार्कर है. सेम वे सुडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है, ये कैविटी है लेकिन सिर्फ नाम की कैविटी, इसका कोई यूज नहीं होता है. तो कैविटी है और काम की भी है तो उसे हम कहेंगे सीलोमेट, और कैविटी है ही नहीं तो सीलोमेट, और कैविटी है लेकिन यूजलेस है, काम नहीं करती तो उसे हम कहेंगे सुडोसीलोमेट. लास्ट वाला जो क्राइटेरिया आ जाता है, 9th नंबर का क्राइटेरिया, वो होता है नोटोकोड. नोटोकोड. अब नोटोकोड का मतलब क्या होता है, अगर किसी एनिमल को वर्टेब्रल कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेब्रेटा. क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे वर्टेब्रेटा. और अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट्स. यस, वर्टेब्रेटा और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेटा और नॉन वर्टिब्रेट्स. अगर किसी को पीठ पे वर्टेब्रल कॉलम है तो हम कहेंगे वर्टेब्रेटा, नहीं है तो हम कहेंगे इनवर्टिब्रेटा. यस, और यही वर्टेब्रेट पहले जो होते थे उसे नोटोकोड कहा जाता है. अब हमारे पीछे क्या है, देखिए ये है बोन का बना हुआ, लेकिन पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ था. उस कार्टिलेज को हम कहते हैं नोटोकोड. अगर नोटोकोड होता है तो नोटोकोडेटा, और नहीं है तो नॉन कोडेट्स. यस, मतलब कोडेट नॉन कोडेट्स कैसे क्लासिफाई करते हैं, अगर पीछे वर्टेब्रल कॉलम या तो नोटोकोड है तो कोडेट, नहीं है तो नॉन कोडेट्स. और आजकल नोटोकोड का रिप्लेसमेंट हो गया वर्टेब्रल कॉलम में, मतलब कार्टिलेज का रिप्लेस हो गया बोन में. तो अगर है तो वर्टेब्रेटा, नहीं है तो नॉन वर्टेब्रेट्स. तो ये वाले हैं 9 क्राइटेरिया, और या तो आप उसे कह लो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन.